Hello, Namaskar. Welcome to Kundli Yatra. Today's video is going to be a very interesting video. जैसा कि आप सब जानते हैं कल फुटबॉल मैच है, फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल है एंड दिस फाइनल इज़ गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन टू वेरी बिग टीम्स. वन इज़ अर्जेंटीना, द अदर इज़ स्पेन. तो अर्जेंटीना एंड स्पेन के बीच में कौन सी टीम कल जीतेगी या कौन सी टीम जीत सकती है, नॉट जीतेगी बट या कौन सी टीम जीत सकती है, किस टीम की प्लानिटरी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं एंड किस टीम को लक ज़्यादा फेवर करता हुआ दिख रहा है, ये बात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ऑल्सो यस, टुमारोज मैच इज़ हाईली एंटिसिपेटेड बिकॉज ये मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है. इसके बाद शायद वो नहीं खेलेंगे. This is the kind of news that is coming out and ये अगर उनके करियर का ये लास्ट वर्ल्ड कप होता है, so then of course it makes it all the more interesting, right? So without wasting any further time, let's just start with the video and try and see कि कौन सी टीम जीतेगी. So what I've done is that मैंने प्रश्न कुंडली भी बनाई है और based on the horoscopes of the captains of the each team, मेसी एंड जो स्पेन के कैप्टन हैं रॉड्री, उनकी कुंडली भी मैंने निकाली है, नेट से ही निकाली है. सो आई डोंट नो हाउ वेरीफाइड दैट डेटा इज़, बट जो कुंडली मेरे पास अवेलेबल थी थ्रू इंटरनेट, मैंने वही कुंडली ली है एंड आई विल ऑल्सो कपल इट विथ टैरो. सो देखते हैं कि कल के मैच में कौन सी टीम जीत सकती है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. Okay, so as you can see, I'm shuffling the cards now and let's see as to which team is going to win tomorrow. Not just through tarot, but we will also look at the Prashna Kundli and the captain's individual's horoscopes, and after that we will decide the final outcome. But let's first see what are the tarot cards saying to us. Which team will win tomorrow the World Cup final between Argentina and Spain? Will Argentina win or will Spain win? So these three cards are for Argentina. These three cards are for Spain. I hope the cards are visible and एक एक कार्ड हम निकालेंगे फॉर द आउटकम ऑफ द मैच फॉर ईच टीम. सो ये स्पेन का है, ये अर्जेंटीना का है. लेट्स सी which team has better cards. Let's start with Spain first. So Spain has the Death card, Seven of Wands and the Nine of Wands. Okay, and इनका जो मैच का आउटकम है that is Two of Swords. Okay, I hope the cards are visible. Okay, now let's start with Argentina's cards. Argentina has the Two of Cups, Three of Wands and the Ace of Pentacles, and the outcome of their match is the Strength card, as you can see. So clearly there is a clear-cut answer here by tarot that Argentina could be the winner in tomorrow's match. Spain may have to face defeat because स्पेन के लिए यहाँ पे डेथ कार्ड है. नाउ लेट मी टेल यू, डेथ डज नॉट मीन एक्चुअल डेथ, बट इट डज मीन दैट
one thing is coming to an end, and it is a transitioning card actually. So one thing coming to an end, so definitely for tomorrow's match, we cannot see very positive energies here, because जैसे कि आप देख पा रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड है. तो 9 ऑफ वॉन्ड्स भी ये दिखाता है कि आपको विक्ट्री के लिए अभी वेट करना पड़ेगा. जीत अभी दूर है आपके पास. You cannot say that, oh, tomorrow Spain is going to be a clear-cut winner. No, even though they will put in a lot of effort, यहाँ पे effort की कमी नहीं दिख रही. effort वो definitely अपना पूरा डालेंगे, बट उनको यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नहीं दिख रही. मुझे लगता है कि लक की यहाँ पे उनके पास कमी रहने वाली है. ऑल्सो जो टीम कोऑर्डिनेशन है वो आपस में कहीं मिसिंग रहेगा. जो उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ड्यूरिंग द मैच टू make the match come towards their side, they will not be able to utilize their opportunities to their favor. So those will be missed opportunities. बट जैसा कि आप ये अर्जेंटीना के कार्ड्स में यहाँ पे देख सकते हैं, these are very positive cards. The two of cups definitely एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाता है टीम मेंबर्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में. आई होप आपको क्लियरली कार्ड्स दिख पा रहे हैं. दिस इज़ द 2 ऑफ कप्स. दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, that tomorrow in the match Argentina will be very well coordinated with each other. Also जिस तरीके का उनको सपोर्ट मिलने वाला है, the support from the audience and the support from the universe is going to be excellent. So luck is definitely on their side, and the Ace of Pentacles here kind of puts a stamp on the fact that yes, tomorrow they can be winners. It is a very high chance that in tomorrow's match Argentina is going to be the winner. At least as per tarot we can say that, because इनका जो मैच का आउटकम भी निकल के आया है, that is the strength card. So you can see, they are full of confidence. They will be full of confidence as a team. And as a team, they believe in their abilities. This is what is shown by the strength card. So because they have such strong belief, it is very difficult to defeat a team that has so much confidence in their strengths, in their abilities. A team that believes in its own efforts and in its team members is definitely difficult to defeat. So yeah, and also if I look at the Prashna Kundli, so this Prashna Kundli is made the moment I asked the question was 18th July 2026, today's date, and the time was 12:26 p.m. Okay, so ये तुला लगन की कुंडली बन के आ रही है हमारी, एंड जो इसमें 7th हाउस का लॉर्ड है. 7th हाउस इज द ऑपोजिशन. ओके, सो जो लगना होता है वो हम खुद हैं, एंड 7th हाउस इज द ऑपोजिशन. सो जो स्पेन है, जो ऑपोजिशन है अर्जेंटीना का, Mars here is sitting in the 8th house, so the opposition becomes weak here. Okay, opposition is definitely weak, but the Lagna Lord Venus, yes, it is in Rahu Ketu axis, so there will be moments in the team where you may feel that, oh, the match is going towards Spain, but ultimately Argentina will be able to pull the match towards them. So Argentina काफ़ी आसानी से ये मैच अपनी तरफ खींच पाएंगे, that is for sure.
क्योंकि उनकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनका वो पूरा यूज़ कर पाएंगे। जो मून की यहाँ स्ट्रेंथ है, जो वीनस की स्ट्रेंथ है, लगन के लॉर्ड की, एंड 10th हाउस में एग्जॉल्टेड जुपिटर इनका बैठा हुआ है अलॉन्ग विद द सन। सो ऑब्वियसली ये सारी जो ये सारा जो कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, ये बहुत क्लियरली अर्जेंटीना की तरफ पॉइंट कर रहा है कि कल के मैच में डेफिनेटली अर्जेंटीना कैन बी अ विनर। जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस स्पोर्ट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हाउस बन जाता है। तो यहाँ थर्ड हाउस एंड सिक्स हाउस अगेन इज़ द हाउस ऑफ कंपटीशन। तो जहाँ भी स्पोर्ट्स की बात आती है वहाँ पे हमारे थर्ड हाउस और सिक्स हाउस का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इन दोनों का ही लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर बन रहा है। जुपिटर इज सिटिंग एग्जॉल्टेड इन द 10th हाउस, विच क्लियरली शोज कि अर्जेंटीना इज गोइंग टू बी द विनर टुमारो। ऑल्सो अगर हम मेसी की कुंडली देखें तो मेसी का उनका अभी जुपिटर का महादशा चल रहा है। एंड जुपिटर की महादशा में जुपिटर जो महादशा लॉर्ड है खुद, वो इस समय ट्रांजिट में एग्जॉल्टेड है। सो इट अगेन शोज दैट मेसी का जो महादशा लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा है। ऑल्सो मेसी का जो मून साइन है वो वृषभ है, टॉरस है। वृषभ में मून एग्जॉल्टेड होता है, तो उनका मून भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एग्जॉल्टेड मून ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उनकी कुंडली में मून बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है भी नहीं। सो इट इज़ ऑल टुगेदर अ स्ट्रॉन्ग मून। सो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। मेसी को कल आसानी से जीत मिल जानी चाहिए, ऐसा लग रहा है। Argentina can be the undisputed winner here in tomorrow's match. As for Rodri, जो स्पेन के कैप्टन हैं, उसमें अगर हम देखें हिज मून इज़ इन कैप्रिकॉर्न साइन। सो मून अगर सैटर्न के साइन में बैठा हो तो वो ऑब्वियसली अपनी पावर वैसे भी लूज़ कर देता है, बिकॉज सैटर्न इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ मून। So moon in Saturn sign is always quite negative. Also moon sitting in the 6th house, क्योंकि इनका जो लग्न निकल के आ रहा है, जो लग्न राइजिंग निकल के आ रही है वो लियो साइन है। और लियो के लिए जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो 6th हाउस बनता है। मून इन द 6th हाउस इज नेवर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, बिकॉज आपका जो ऑपोजिशन होगा वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं डिफीट करने में, आपको दबाने में सक्सेसफुल रहेगा अगर मून 6th हाउस में होता है और अगर मून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, बिकॉज मून इज़ अ फेमिनिन प्लैनेट एंड मून इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इट इज़ नॉट अ क्रूअल प्लैनेट। मून एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट होता है। जब इतना सॉफ्ट प्लैनेट 6th हाउस में आके बैठ जाए तो ऑब्वियसली वहाँ पे जीत पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। anyhow, I wish all the best to both the teams, to Argentina and to Spain, and let's see. I'm sure at least by judging by the cards and looking at the horoscope, the Prashna Kundli and everything, I can say one thing for sure कि कल का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। बट येस, अर्जेंटीना somehow may turn out to be the clear winner here. So yeah, this was the video for today. Hope you liked the video. In case you do, please follow us, subscribe our channel, like the video and share it as much as you can. Thank you so much.